Good morning, dear students. Students, today we will get the proper understanding of the letter writing. Today we have to discuss about the even how many kinds of letters are there, right? Means kinds of the letters we have to study, and then after we will see the format of even letter of the inquiry, letter to the inquiry and order. What will be the real format for this, right? And once more I will just tell you how you will just write the letters, right? Exactly with the exactness, right? So we will get the letters here and make concentration over here what I am telling you, right? So students, as you can see, so students, today just have a look here. The first letter classification is formal and the second letter classification is informal, right? So formal and informal, these are the two letters you have to understand properly, right? Now just let me tell you, a formal letter is one written in a formal language, right? In that stipulated format for official purpose especially, right? And formal letters are written for official and the professional communication, right? अब आप देखिए, बड़ा आसानी से इसको समझने की ज़रूरत है. फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर द ऑफिस लिखा जाता है. मीन्स जब भी कभी आप कोई लेटर लिखते हैं किसी ऑफिस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ रिटन अ लेटर टू द कैबिनेट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट? You have written a letter to the district magistrate, you are writing a letter to the तहसीलदार of your even तहसील, right? So जहाँ कहीं भी बात आती है ऑफिसेस को, तो जब कभी भी आप किसी ऑफिसेस में कोई लेटर लिखते हैं, that will be considered as the formal letters, right? But whenever you are writing an informal letter, right, so you can also call it that the informal letters are used for the casual or the personal communications and right. So अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है? दैट इज द कैजुअल पार्ट, राइट? और यू कैन कॉल इट ऑल्सो लाइक द पर्सनल, राइट? सो जब भी कभी आप पर्सनल लेटर्स की बात करते हैं, दैट विल गो अंडर द सेक्शन ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स, राइट? इन हिंदी यू कैन ऑल्सो कॉल इट द औपचारिक एंड अनौपचारिक पद, बट यू आर नॉट गेटिंग द हिंदी लैंग्वेज, दैट्स वाई यू कैन मेक इट स्किप, राइट? सो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? स्पेशली फॉर द ऑफिसेस, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? एंड इनफॉर्मल मीन्स दैट इज यूज फॉर द personal purposes, right? Now let me tell you something more, right? Personal means you can write the letter to your mother, father, right? Relatives. These comes under the section of your formal letter. But I have told you previously, for the proper understanding of the formal letters, that to whom you will write the formal letters, right? Then after, one more thing I am telling you, right? If you are going to write a letter, then you must have to follow the proper procedure, right? The proper procedure, and the procedure that will be what? Exactly, I am telling you what you are getting means format. In which format you are going to write, right? Format is the very compulsory part, right? And today I will tell you how you can write the letter of an order, right? The letters of an order. Okay, something more, some hints I am going to tell you, that is, mention your intention of your writing the letter in the opening paragraph. Why you are going to write the letter, that must be definitely be clear. पहले ही पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने लेटर लिखा क्यों है. अब लेटर को पैराग्राफ में डिवाइड करना हमने आपको पहले भी बता रखा है. सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, दैट मस्ट बी रिलेवेंट. वो बिल्कुल एकदम बेहतर जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए. एंड इन योर सजेशंस एंड इवन द राइटिंग कंप्लेंट, आपको कोर्टियस और जेंटल होना पड़ेगा. मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज का यूज़ आप मत कर दीजिए जो लैंग्वेज रीडर को कहीं ना कहीं हर्ट कर दे, राइट? सो फीलिंग्स ऑफ द रीडर्स मस्ट नॉट बी हर्ट. ऐसा नहीं उसे समझ में आना चाहिए कि आपने बहुत गुस्से में कुछ लिखा हुआ है. एंड कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, अपने सेंटेंसेस को भी छोटा रखना है. यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? दैट मस्ट बी रिटन इन अ सिंपल वे
don't go through inappropriate way beyond imagination, right, for the making your writing skill effective. Definitely your writing skill will be effective, your letter will be effective if you will use the simple language in an order. यानी अगर शब्दों को उनके क्रम में रखा जाएगा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप एक बहुत बेहतर तरीके की राइटिंग स्किल को अप्रोच कर पाएंगे, राइट. अवॉइड स्पेलिंग, ग्रामेटिकली एंड केयरलेस मिस्टेक्स इन योर लेटर. दूसरी बड़ी बात कि जब कभी भी आप राइट कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स और मतलब कुछ ऐसी कि आपकी असावधानी की वजह से उसमें राइटिंग ओवर राइटिंग ना हो पाए, राइट. राइट नीटली, साफ सुथरा लिखना होना है चाहिए. बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज. बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके और ब्रीफ, संक्षिप्त भाषा में अपनी बातों को लिखें. एंड ऑलवेज यूज द ब्लॉक फॉर्मेट दैट इज नो आइडेंटिफिकेशन एंड इज लेफ्ट अलाइन. अब तो आपको हमेशा जो आपकी राइटिंग स्किल है उसको हमेशा लेफ्ट अलाइन में आपको लिखना चाहिए. मतलब जो लेटर्स, जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर एक ऑर्डर में, ऐसा ना हो कि लाइनें इधर उधर देखने में. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो कॉल दैट योर लेटर मस्ट बी रिटेन इन अ नाइस वे, राइट, जिसको देखने से वो सुंदर लगे, राइट. सो यू ऑल्सो नो दैट द राइटिंग इज एन आर्ट ऑल्सो. तो वो राइटिंग एक कला जो होती है, लिखना भी एक कला है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट. Now we are discussing about the business letter. Today you have to study, right, basically not for the Uttarakhand board syllabus as it is given here, but for CBSE also. We will discuss today the topic that will be relevant for the CBSE syllabus, right. What is the letters, business or official letters, letters to the editor and the job application. But we are not going to cover this job application. We are not going to cover letters to the editor, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है. लेटर टू द एडिटर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कब? अपने टर्म फर्स्ट में, राइट. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टर्म फर्स्ट में इससे रिगार्डिंग एग्जाम्स भी हम लोग दे चुके हैं. सो दैट्स वाई इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस. ओनली व्हाट वी हैव टू डू, द पार्ट ऑफ दिस academic session, the part of this term will be only business or official letters. But for what purpose? Placing an order or sending replies and the making inquiry. These two facts we have to study here, right? Placing an order and making an inquiry, right? So students, make a brief, just make a concentration over here. इसे भी कट कर दीजिए, इसे भी नहीं पढ़ना है आपको. बस आपको जानकारी रखनी है किस चीज़ की, तो आपको जो जानकारी लेनी है वो जानकारी केवल और केवल इन दो चीज़ों की लेनी है, मेकिंग इंक्वायरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स. दो चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द लेआउट, कैसे आप एक लेटर को लिखते हैं, बिजनेस लेटर को, राइट. सो सबसे पहले सेंडर्स नेम, उसके बाद डेट, जो कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, राइट. उसके बाद जब आप मूव करते हैं, जस्ट बिलो इट नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, है ना, जिसका की जो कि नेम और डेजिग्नेशन लिखता है एड्रेसी का. उसके बाद क्या आपकी राइटिंग का सब्जेक्ट है, वाई यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, दैट विल योर इंटेंशन ऑफ द राइटिंग. लेकिन ध्यान रखिए सब्जेक्ट बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए और मोर देन वन लाइन, इसको एक लाइन से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन, राइट. देन आफ्टर सैल्यूटेशन का एक बहुत ही बेहतर रोल होता है राइटिंग सेक्शन में. जितनी बेहतर सैल्यूटेशन उतना बेहतर रिस्पॉन्स. यू कैन ऑल्सो से कि अगर किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं दैट विल बी द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल, राइट. देन आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर, ये तो चूंकि आपके पूरे के पूरे लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसी के भीतर आपके मैसेजेस छुपे होते हैं, राइट. सो दिस बॉडी ऑफ द लेटर विल बी द इवन अप्रोप्रिएट. इसको आप कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में, राइट, आपको होना चाहिए. पहला पैराग्राफ मतलब बताता है क्या, दैट विल बी द पर्पस ऑफ राइटिंग. सेकेंड पैराग्राफ आपको बताता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है. एंड फाइनली टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, दैट विल बी द फाइनल पैराग्राफ, कि क्या सजेशन जनरली है, राइट. उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पर और सिग्नेचर पे, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे और सिग्नेचर के ऊपर. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैंने आपको बताया था कि एज योर सैल्यूटेशन गोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विल बी एज लाइक. तो जैसा सैल्यूटेशन होता है उसी के रिगार्डिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी होती है, राइट. एंड दिस एलिमेंट इज अ सिंगल वर्ड सेपरेटेड फ्रॉम द मैसेज बाय अ ब्लैंक लाइन. एक लाइन के गैप के बाद ये होती है, राइट. उसके बाद आप अपना सिग्नेचर देते हैं विथ फुल नेम, विथ हिज डेजिग्नेशन
at the ends of the letter, right? और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, when you are going to write a letter you will have to put one line gap between the various elements, means complementary clause और signature के बीच कम से कम एक लाइन का गैप, यानी जब भी कोई आप एक कीवर्ड, जैसा कि इन दोनों के बीच में आपने एक लाइन का गैप रखा, राइट, इन दोनों के बीच में जैसा कि आपने ये एक लाइन का गैप रखा हुआ है, ऐसे ही जब भी कभी एक आपका एलिमेंट खत्म होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट करने के पहले आप एक लाइन का गैप जरूर देंगे, राइट। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ऑर्डर वाले और इंक्वायरी वाले लेटर्स आपके लिए लिखे जाने चाहिए या क्या होते हैं जनरली। सो मेकिंग इंक्वायरीज और द प्लेसिंग ऑर्डर्स, राइट, व्हेन यू आर राइट मेकिंग एन इंक्वायरी आर मेड व्हेन अ बायर विशेस टू नो द क्वालिटी ऑफ प्राइस, availability of goods to be purchased or the terms of sale. Letter of inquiries describes what the writer wants and why. It is also written to request information. That information can be job seekers, prices, college applications or any other services, right? तो अब देखिए, जब कभी आप इंक्वायरी की बात करते हैं तो अगर कोई वो बायर है, राइट, बायर मीन्स खरीदार, अगर कोई सामान खरीदने वाला है तो ऑब्वियस है कि वो सामान की क्वालिटी, उसकी कीमत, उसकी जो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। अगर एक आप स्टूडेंट के बिहाफ पर बात करते हैं तो वो एक रिटन रिक्वेस्ट करता है और इन्फॉर्मेशन क्या ढूंढता है कि वो कॉलेज कैसा है, कैसे एप्लीकेशंस होंगे एंड व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर देयर। अगर कोई जॉब सीकर है, कोई नौकरी ढूंढने वाला है तो वो अपनी सैलरी के बारे में ढूंढता है, वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंक्वायरी करता है। सो दीज आर द टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रीवियसली बिफोर राइटिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी और द ऑर्डर। जब कभी आप ऑर्डर वाले लेटर की बात करते हैं तो लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल and purchase of goods or of services offered. Order are considered to be one of the simplest types of direct request. While placing an order, just state your needs clearly and directly. You must be sure to introduce complete and accurate information. Right. So जब कभी आप कोई लेटर प्लेस करते हैं ऑर्डर वाले, तो उसमें ध्यान रखिए, ऑर्डर जनरली सामानों की अगर बात आएगी कि ऑर्डर में आप सामानों की बात करते हैं तो ये क्या होगा, गुड्स की, सामानों की लिस्ट बना करके दी जाएगी आपको, और ये एक तरह का डायरेक्ट रिक्वेस्ट होता है। जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें एक तरह का रिक्वेस्ट माना जाता है, राइट। जब भी कभी आप कोई ऑर्डर प्लेस करें तो आपको सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में डायरेक्टली लिखना होता है, और ध्यान रहे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जानी है वो इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट हो। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि जब कभी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है, राइट। सो यू विल हैव टू फॉलो द सेम डिस्क्रिप्शन लाइक दैट, कि जितना ज़्यादा आप बेहतर इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी बेहतर आपकी प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होती है। अदरवाइज आपने किसी इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया, देन डेफिनेटली दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू एंड आई थिंक यू विल गेट द लॉस देयर, राइट। सो ऑर्डर प्लेस करते समय इस बात का बखूबी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू द फॉर्मेट। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। यू आर सुजाता एंड सिरिस, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ VVM पब्लिक स्कूल बागेश्वर, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड, कात्यूर बाजार, बागेश्वर, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द स्पोर्ट्स आर्टिकल दैट यू विश टू परचेज फॉर योर स्कूल। अब देखिए, स्कूल के लिए आपको एक लेटर लिखना है, वो भी किसका, ऑर्डर का लेटर लिखना है। एज अ सुजाता और सीरीज, अगर एज अ बॉय है तो आप उसे सीरीज लेंगे, एज अ गर्ल यू कैन टेक इट एज अ सीरीज, एज अ सुजाता, राइट। स्कूल का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। सो अब देखिए कि कैसे इसका फॉर्मेट बनाया गया। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, VVM पब्लिक स्कूल। एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस, द एड्रेस, दिस एड्रेस इज गिवन हियर, देन आफ्टर मार्जिन देयर विल बी डेट, राइट। यू कैन ऑल्सो कॉल इट द हेडिंग, हेडिंग सेक्शन में आपके आता था, राइट। उसके बाद जिसको दिया जाना है, ये जो लेटर है ये जिसको दिया जाना है, you have to write the letter, you have to write the address of those sales manager, क्या organization का name है, and what is the address of the organization, right? So it is the inquiry of organization to whom you are writing the letter. Subject क्या है,
order for sport articles, right? And what is written here? Sir, we wish to purchase following sport articles for our school. Kindly arrange to send them by the ends of this month, and please ensure that the sport article sent are the best quality. तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अपनी बातों को डायरेक्टली कहा गया बहुत सीधे सीधे लैंग्वेज में कि हमें स्पोर्ट आर्टिकल्स चाहिए अपने स्कूल के लिए, और कृपा करके इस मंथ के एंड तक उसे अरेंज करने की कोशिश करें, हमें सेंड करें. और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि दैट मस्ट बी द बेस्ट इन क्वालिटी, राइट. पेमेंट शैल बी मेड सून आफ्टर रिसीविंग द पार्सल ऑफ द गुड्स, और वो पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा गुड्स को रिसीव करने के बाद. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एज अ सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, यहाँ पे आपको पूरी अच्छे तरीके से कैसे एक लिस्ट बना करके दी गई है, राइट. एंड फाइनली इट हैज़ बीन कम्स एज अ फाइनल लाइन, प्लीज सप्लाई देम एंड डिडक्ट द परमिसेबल डिस्काउंट इन द इनवॉइस. यानी जो भी आपकी बिल होगी, इनवॉइस मीन्स बिल, उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका डिडक्शन होगा, जो आपका डिस्काउंट होगा, वो आप बिल्कुल इसमें परमिसिबल कर दीजिएगा. एंड योर ट्रूली सीरीज, दैट इज द फिजिकल एजुकेशन टीचर, राइट. So students, that was the letter to the order, letter to the inquiry we will cover tomorrow. So up to the time you will make a revision and try to make the practice with some another question of letter to the order, and further if you are getting problem then you are free to ask. So students, we will meet in the another video. Up to the time, thank you, have a nice day.